की मोनोपोली, सुपीरियरिटी, ठीक है, उसकी एक्स्ट्रावेगेंट और इन चीजों को चैलेंज कर रही थी। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैथोलिक क्या होती है? यूनिवर्सल, ठीक है। Like you can say, I am Catholic in my choices. Means you are a cosmopolitan thing. You are a cosmopolitan being. ठीक है। तो अब प्रोटेस्टेंटिज्म is a new force. It spread to every nook and corner of Europe. ठीक है। अब टू फोर्सेस जो हैं वो आमने सामने हो गई यूरोपियन कंटिनेंट में। वन वाज द कैथोलिक फोर्स एंड द अदर वाज द प्रोटेस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो अब इनके माबेन टग ऑफ वार होती है, ठीक है। उसको हम 30 ईयर वॉर कहते हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस 30 ईयर वॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड the leading and powerful Catholic and Protestant countries of European landscape. That is must. डायरेक्ट हम 30 ईयर वॉर से शुरू करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। As you all know, Spain was one of the powerful countries. Spain was one of the most dominant and powerful countries in Europe. It became powerful from Middle Ages onward under the Muslim rule. The Spanish Empire flourished under the Muslim rule, right? तो अब जरा let's explore this Spanish Empire in detail. ठीक है, जरा देखें। ड्यूरिंग 1469 one prince and one princess got married. They were actually French at that time. I mean during 1500th century, entire Spain was divided into two realms. The Muslim realm was the eastern Spain, and the northern Spain comprises of what? Different principalities, ठीक है, जिनमें क्रिश्चियन प्रिंसेस या प्रिंसेसेस रूल करती थी, ठीक है। तो नॉर्दर्न स्पेन में एक शहजादी जिसका नाम इजाबेला था, अगेन इजाबेला, ठीक है। And she was the princess of what? Which state? Castile. She belonged to the Castile state of Spain. She married a prince whose name was Ferdinand I, and he was the Prince of Aragon. Aragon was one of the states of Spain, right? शादी के बाद अब इन दोनों ने क्या किया? They made alliances with other Christian states, other surrounding Christian states, as well as with the papacy, papal states. Where are papal states? In Italy. As I told you, Pepin the Short gifted a land to the church. उसको हम क्या कहते हैं? papal states, ठीक है। अब इन दोनों ने शादी की, सराउंडिंग अदर क्रिश्चियन प्रिंसेस को अपने साथ मिलाया, एंड अल्टीमेटली क्या किया? दे एक्सपेल्ड मुस्लिम्स फ्रॉम स्पेन। द लास्ट मुस्लिम एम्पायर या द लास्ट मुस्लिम स्टेट इन स्पेन वाज Grenada. Its name was Grenada. Isabella and Ferdinand expelled Muslims. The Muslim lost state in Spain. अब उसके बाद क्या होता है? They made strong alliance with the papacy.
पोप के साथ, मीन्स होली रोमन चर्च के साथ उन्होंने स्ट्रॉन्ग गठजोड़ बनाए इसाबेला एंड फर्डिनेंड ने। फिर उसके बाद दे फोकस देयर एनर्जीज on strengthening the new Catholic Christian Spain। अब मुस्लिम्स नहीं रहे तो नाउ इन्होंने स्पेन को डिक्लेयर किया क्या, एक कैथोलिक क्रिश्चियन स्पेन। इसलिए दे इंट्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन स्पेन। कौन? इसाबेला एंड फर्डिनेंड। बिसाइड्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड सम intolerant religious policies to deal with the Jews, the Muslims and the other minorities, and even with the Protestants, right? In short, उसके बाद क्या होता है? Isabella and Ferdinand were replaced or succeeded by their grandson, Charles the Fifth. Charles V. He was grandson of Isabella and Ferdinand. Yani, he is one of the greatest leaders of Spain so far. कौन? Charles V. Charles the Fifth. अब interestingly, he was heir to the Spanish Empire, क्योंकि ये पोता था किसका? इसाबेला एंड फर्डिनेंड का। इसके अलावा let me tell you, he was a member of Austrian Habsburg family. What do you know about Habsburg family? Habsburg. In short, the Austrian ruling family was known as what? The Habsburg family. The Austrian ruling family was Habsburg family. खानदान का नाम है, राइट? अब ये जो चार्ल्स V था, he was heir to the Spanish throne as well as to the throne of Habsburg lands। अब जरा इसको समझे, हैब्सबर्ग लैंड कौन कौन सी थी? मैं रीडिंग करने इसलिए कह रहा हूं। स्पेन, राइट? दिस इज योर फ्रांस, राइट? दिस इज योर ऑस्ट्रिया, राइट? दिस इज मेडिटेरियन सी। हियर इज योर बोहेमिया, one of the German states, right? Here is, this is Netherlands। आप इसको जरा टेक्निकली समझो बेटा। स्पेन एक कैथोलिक कंट्री है ना? अच्छा, फ्रांस हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, इसको छोड़ दें। ऑस्ट्रिया, हमारा मकसद है हमने हैब्सबर्ग फैमिली को समझना। एक और चीज की है, इधर यहां पे इटली है, ठीक है? यहां पे रोमन एम्पायर है, ठीक है, टेट्यूलर, और इसको पापल स्टेट्स का है, ये पूरी मैप यूरोप की, राइट? अब ये जो ऑस्ट्रिया है, इसकी रूलिंग फैमिली का नाम क्या है? हैब्सबर्ग। गुड। अब जो चार्ल्स द फिफ्थ है, वो एक तो इसाबेला एंड फर्डिनेंड ऑफ फ्रांस का डायरेक्ट होता है। यूं फ्रांस का थ्रोन भी इसके पास, स्पेन का थ्रोन भी इसके पास। उसके बाद यानी फ्रॉम पैटर्नल साइड ऑस्ट्रिया की भी का थ्रोन भी इसके पास आ गया, ठीक है? अच्छा, ये जो नेदरलैंड्स हैं, इट वाज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पेन, यानी नेदरलैंड्स भी चार्ल्स द फिफ्थ को अपने बाप की तरफ से मिला। ये इसका भी सोआन हो गया। कौन? चार्ल्स द फिफ्थ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है, अब सुने। अब चार्ल्स द फिफ्थ जो है, उसको रोमन एम्पायर का
एम्परर भी क्लेम किया गया, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इसाबेला एंड फर्डिनेंड स्पेन और पॉपल स्टेट्स की बड़ी क्लोज एसोसिएशन थी, ठीक ना। और रिकेप योर मेमोरीज प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि एक एम्परर को पोप या चर्च, कैथोलिक चर्च सेलेक्ट करता था, उसको क्या कहा जाता था? द होली रोमन एम्परर, ठीक है। दिस चार्ल्स द फिफ्थ आल्सो इनहेरिटेड व्हाट? द एम्पररशिप या द थ्रोन ऑफ होली रोमन एम्पायर। अब ये सारे इसके पास आ गए, किसके पास? चार्ल्स द फिफ्थ के, एक्सेप्ट फ्रांस के। ओके, अब क्या होता है? चार्ल्स द फिफ्थ के दौर में स्पेनिश जो हैं, जो स्पेनिश एडवेंचरर्स हैं, दे कंकर्ड मैक्सिको एंड पेरू, बिसाइड्स दे डिस्कवर्ड योर एंटायर साउदर्न अमेरिका एज वेल। वहां से रिचेस आ रही थी, ठीक है, गोल्ड सिल्वर एंड सब कुछ। तो मीन दिस वाज द गोल्डन एरा ऑफ स्पेनिश रूल। अब इसके साथ, चार्ल्स द फिफ्थ के साथ एक बड़ा मसला था। क्या? He was battling with the mighty Ottoman Empire, the Muslim Ottomans, ठीक है। चार्ल्स द फिफ्थ का जो नाइटमेयर था वो ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर सेंट्रल यूरोप तक पहुंच गया था, ठीक है, वन। सेकेंडली, इसका दूसरा मसला जो था वो इधर था, सेंट्रल यूरोप के अंदर जो जर्मेनिक स्टेट्स हैं, ठीक है, they refused to accept this Charles V as the Holy Roman Emperor। यानी जर्मन जो स्टेट्स थे उन्होंने कहा हम आपको होली रोमन एम्परर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मींस एक स्ट्राइक था। लाइकवाइज ही ट्राइड टू एनेक्स एंटायर इटली इनटू द डोमेन ऑफ स्पेन। इसको फ्रांस ने रोका, राइट। इवेंचुअली ही गेव अप। हु? चार्ल्स V। He gave up. He retired to a Christian monastery. He retired to a Christian monastery and he abdicated his throne. अब इसने अपनी ये सारी जो सल्तनत है इसको गिव अप किया, छोड़ दिया। एंड न्यू, अब इसकी सल्तनत अब दो मोनार्क्स के पास आ गई। वन वाज हिज यंगर ब्रदर फर्डिनेंड वन एंड द अदर चंक ऑफ हिज एम्पायर वेंट टू हिज सन फिलिप टू। यानी इसका पूरा एम्पायर अब इन दो में डिवाइड हो गया, फर्डिनेंड वन एंड फिलिप टू। हु वाज फिलिप टू? हिज डायरेक्ट सन। फर्डिनेंड को जरा छोड़ दें, फिलिप टू। अब ही इज द सन ऑफ चार्ल्स द फिफ्थ। अब फिलिप ने फर्दर अपने फादर की लेगेसी को प्रमोट करने की कोशिश की, राइट। अब इसी दौरान क्या होता है, फिलिप ने जो चीजें की, लाइक ही आल्सो ट्राइड टू एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एज हिज ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। अच्छा, इसी तरह उसने भी रिलीजियस इंटॉलरेंस का मुजाहिरा किया, particularly the Protestants, the Muslims and other minorities, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, इसकी फिलिप टू की एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो तारीख हमेशा याद रखें, क्लोज द डोर। क्या गलती थी? इसकी सबसे जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि he tried to impose unequal taxes on the Netherlands। यानी इसने गैर मुनसिफाना या गैर मुनसिफ या भारी भरकम टैक्सेस मुसल्लत किए नेदरलैंड के जो सिटीजन हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से अब नेदरलैंड्स में क्या हुआ, रिबेलियन शुरू हो गई। पूरे में नहीं, आधे में, आधे में। इस रेलम को इवेंचुअली यूनाइटेड प्रोविंसेस भी कहते हैं, या इसको यूनाइटेड नेदरलैंड्स भी कहते हैं। इसको रिमेंबर दिस वर्ड। एंड इस चंक को
स्पेनिश नेदरलैंड्स कहा गया। यानी फिलिप II imposed unequal taxes on entire Netherlands, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न नेदरलैंड था यहां पे स्पेनिश रूल के अगेंस्ट या फिलिप II के रूल्स के अगेंस्ट बगावत हुई, राइट। अब जो ईस्टर्न जो नेदरलैंड था इसने तो इस रिबेलियन में नॉर्दर्न नेदरलैंड्स का साथ नहीं दिया, जबकि नॉर्दर्न नेदरलैंडर्स ने प्रोटेस्ट किया। और यहां पे मोस्टली क्या थे? प्रोटेस्टेंट्स थे। कहां पे? नॉर्दर्न नेदरलैंड्स में। अब इनको क्रश करने के लिए फिलिप II ने ही मूव्ड हिज आर्मी टू क्रश दिस रिबेलियन इन यूनाइटेड नेदरलैंड्स। ही सेंट हिज आर्मी। अब इसी दौरान यूनाइटेड नेदरलैंड्स ने खुद को स्पेनिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया एंड दे प्रोक्लेम यूनाइटेड नेदरलैंड एज ए रिपब्लिक। तो उसी दौरान अब गेम क्या होती है, यहां से आपका ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में तब जो रूलर थी उसका नाम क्या था? एलिजाबेथ I। एलिजाबेथ I की मां का नाम बताया, सिस्टर लेडी बोलेन वाज द मदर ऑफ एलिजाबेथ I, राइट। तो अब ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेदरलैंड्स को इमदाद फराम की अगेंस्ट दी स्पेनिश डोमिनेशन। तो अब यूं डायरेक्ट फिलिप II जो है डायरेक्ट he became क्या कहें entangled with Britain, right? He faced troubles with Britain directly. कौन? फिलिप II। अब he sent his armada, अपना बहरी बेड़ा भेजा to teach Britain a lesson। अब उस बेड़े का नाम है द इनविंसिबल आर्मेडा। द इनविंसिबल आर्मेडा। बहरहाल अब इस इनविंसिबल आर्मेडा को शिकस्त होती है ब्रिटेन के हाथों, राइट। अब यहां से जो स्पेन है वो दोबारा जरा अपने एम्बिट्स के अंदर आ गया, फर्दर एक्सपेंशनिज्म उसने फिलहाल रोक दी, ठीक है। सो स्पेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स बिफोर द 30 ईयर वॉर। समझ गए? गुड। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़े।